Good morning, students. Myself, Kosa teacher from Paras English High School. Today, I will teach you Standard 10 subject PT Physical. Chapter number 5 Infection and Non-Infection Disease. इसका मीनिंग होता है कि चेपी અને બિનચેપી રોગ. Infection એટલે ચેપી અને બિનચેપી રોગ. Now start the lesson. Infection is a well-known word. A person suffering from disease comes in contact with the another person who becomes a prey of the disease. That is called infection. Disease caused by bacteria, virus, fungi can be infection. Crores of germs and bacteria from the body of a diseased person reach bodies of other animals via some ways and cause disease in them. These bacteria enter human body through the medium of air or dust, through water, milk or food, through bites, stings of animals or insects, through personal contact or through represents or extract urine of disease carrying persons and cause disease. When a disease is spread through bacteria from the animal to other animal, we call that disease as infection disease. When a large number of persons are attacked with infection of certain disease simultaneously, it is called epidemic, called influenza, flu, pneumonia, tuberculosis of lungs, jaundice, cholera, typhoid, whooping cough, diphtheria, measles, influenza, pneumonia, chickenpox, leprosy, AIDS, johnworms, etc. are infections disease. Infection is well known words. चेप शब्द क्या होता है ये आप जानते हैं. अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम डिसीज कम्स इन कॉन्टैक्ट विथ अनदर पर्सन कि एक व्यक्ति एक व्यक्ति કોઈ રોગથી પીડિત હોય તેના સંપર્કમાં આવે તો चेपी रोग થાય છે. અને ચેપી રોગ હોता है एक व्यक्ति को कोई बीमारी हो तो उसके हम संपर्क में आते हैं तो उससे क्या है चेप इन्फेक्शन फैलता है. हु बिकम्स अ प्रे ऑफ डिजीज. दिस इज कॉल्ड इन्फेक्शन. और इसको क्या है चेपी रोग कहते हैं. इन्फेक्शन लाग्यो कहवाय. डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, जीवाणु, बैक्टीरिया, विषाणु, वायरस तथा फंगस થી થતા રોગો ચેપી હોઈ શકે. Cross the germs and bacteria from the body of diseased person reach bodies of other animals via some ways and cause disease in them. રોગી માણસના શરીરમાંથી કરોડો વિષાણુ કોઈ માર્ગ અન્ય પ્રાણીઓના શરીરમાં પહોંચી જાય તેઓમાં રોગ पैदा કરે છે. यानी जो व्यक्ति जो बीमार है और उसके हम कांटेक्ट में आते हैं तो उसके जो जीवाणु जो है वो एयर के थ्रू हमारे शरीर में पैदा हो जाते हैं जिससे हमारे अंदर भी इन्फेक्शन हो जाता है. दिस बैक्टीरिया एंटर ह्यूमन बॉडी थ्रू द मीडियम of air, dust, through water, milk or food, through bites, stings of animal, insects, through the personal contact or through repression
of extra। આ જીવાણુ जो है આ વિષાણુ બેક્ટેરિયા जो है હવા અથવા ધૂળના માધ્યમથી એની ये बैक्टीरिया जो है एयर हवा के थ्रू, धूल के थ्रू, पानी के दूध, आहार द्वारा प्राण इंसानों के शरीर के अंदर जो है संपर्क में आता है। यानी अगर जहाँ वातावरण जो है थोड़ा डर्ट होता है तो वो हम क्या कहते हैं एयर के थ्रू हमारे अंदर वो बैक्टीरिया आ जाता है। यूराइन ऑफ डिजीज carrying person and cause disease। When a disease spread through bacteria from the animal to other animal, we call that disease as infection disease। રોગોની પ્રત્યક્ષ સંપર્ક દ્વારા કે રોગવાહક લોકોના શ્વાસોચ્છ્વાસ અથવા મળમૂત્ર દ્વારા માનવ શરીરમાં પ્રવેશને રોગ પેદા કરે છે। જ્યારે એક પ્રાણી બીજા પ્રાણીથી સુધી વિષાણુ મારફતે રોગોનો ફેલાવ થાય ત્યારે તે રોગને આપણે ચેપી રોગ કહીએ। એક સાથે અનેક માણસોને જ્યારે અમુક રોગોનો ચેપ લાગુ પડે ત્યારે રોગચાળો એપિડેમિક ફાટી निकलવું એમ કહીએ છીએ कि अगर हम बैक्टीरिया जो है ऐसी बीमारी इन्फेक्शन है कि हम अगर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के कांटेक्ट में आते हैं, संपर्क में आते हैं तो ये हमारे अंदर वो रोग जो है हवा के थ्रू, एयर के थ्रू और वो मिल्क, आहार, फूड वगैरह के थ्रू जो हमारे अंदर वो इन्फेक्शन आ जाते हैं। जैसे कि इट इज़ कॉल्ड एपिडेमिक। ત્યારે રોગચાળો ફાટી નીકળ્યો છે। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोल इन्फ्लुएंजा, निमोनिया, ट्यूबरकुलोसिस ऑफ लंग, जोनेडिक्स, कोलेरा, थाइफॉइड, ओपिक, ये सब बीमारी जो है क्या है इन्फ्लुएंजा, निमोनिया, फेफसानो श्रेय, कमड़ो, कोलेरा, टाइफाइड, मोटी उधरस, डिफ्थीरिया, ओरी, छबड़ा, रक्तपीत, एड्स, वाड़ो मर्डो वगैरह ये सब क्या जो है ये सब चेपी रोग है कि एक दूसरे के कांटेक्ट में और संपर्क में आते हैं तो ये सब बीमारी जो है होती है। जैसे कि यहाँ पे सब नाम दिए हैं। जर्म्स एंड जर्म्स कैरियर। जंतु અને જંતુવાહક। Germs is very small living insect. Some of them come under animal kingdom. Some come under the plant kingdom। Insect enter the body, colonize there and produce disease. They are called practice. Germs enter the body. They cause malaria, plague, cholera. Germs of malaria come under the animal kingdom. They are called protozoa, Indian germs. Germs is a very small living insect. જર્મ અને જંતુ जो है એક અતિ સૂક્ષ્મ સજીવ પદાર્થ છે। તેમના કેટલાક પ્રાણીઓના વર્ગમાં અને કેટલાક વનસ્પતિના વર્ગમાં આવે છે। यानी जर्म जो है वो इंसानों के अंदर भी होते हैं और प्राणियों के अंदर भी होते हैं और उसी के थ्रू एक दूसरे के अंदर वो आते हैं। જે જંતુ માનવ શરીર ઉપર કે શરીરનો રહેઠાણ કરી રોગ ઉત્પન્ન કરે છે તેને પરોપજીવી જંતુ કહે છે। मलेरिया, प्लेग, कोलेरा, दराज वगैरह કેટલાક રોગો વિષાણુ શરીરમાં પ્રવેશી થવાથી મલેરિયાના વિષાણુ જેવા કેટલાક જંતુ પ્રાણી વર્ગમાં કોઈ તેમને પ્રોટોઝા એટલે આદિ વિષાણુ કહે છે। Bacteria are under the plant kingdom. These viruses are of different types in flies from one place to another place. For example, fungus is a plant. It is very small stream. When fungi freeze after some days, it produces spores like few small drops. It flies in the air here and there. When it drops on food or on the other things, fungi increase. Fungi enter the body, reproduce themselves. It makes man disease. Some bacteria are useful to man. Milk is converted into curd due to bacteria
Yes, bacteria prepares alcohol in the flour of dhokla. Alcohol is prepared from sugar with the help of bacteria. अब બેક્ટેરિયા આર અંડર ધ પ્લાન્ટ કિંગડમ. બેક્ટેરિયા એક જીવાણુ વનસ્પતિ છે. કઈ વનસ્પતિ છે? જીવાણુ વનસ્પતિ છે. આ વિષાણુ જુદા જુदा आकार का હોય છે. यानी ये बैक्टीरिया जो है ये अलग अलग आकार का होता है. विषाणु एक प्राणी नहीं परंतु एक स्थान की बीजा स्थाने होती वनस्पति है. विषाणु क्या है? ये बैक्टीरिया जो है कोई एक वो प्राणी नहीं है, लेकिन एक जगह से दूसरी जगह जो है वो उड़ के वो जाता है. जेम के फॉर एग्जाम्पल इट इज़ वेरी स्मॉल स्ट्रिंग वेन फंगी फ्रीज अदर सनडेज કે જેમ કે ફૂગ એ ઝીણા તાતાળાવાળી વનસ્પતિ છે. ફૂગ જમ્યા બાદ થોડા દિવસે તેના પર કાળી છાટ જેવી સ્પ્રોસેસ पैदा થાય છે જે હવામાં આમ તેમ ઉડી જાય છે. यानी एक फंगी फ्रीज जो है तो वो उनके अंदर तातावड़ी वनस्पति होती है जिसके अंदर जो है काली छाटी जैसी स्प्रेस पैदा होती है और जो हवा में इधर से उधर घूमती है અને ખોરાક થવા બીજી યોગ્ય વસ્તુ પર પડતા જ પૂરી ભૂખ બાંધવા માંડે છે. માનવ શરીરમાં પ્રવેશી તે વંશ વૃદ્ધિ કરે છે અને માનવને રોગી બતાવે છે કે જે કેટલા વિષાણુ માનવીને ઉપયોગ પણ હોય છે. દાખલા તરીકે ફોર એક્ઝામ્પલ दूधમાંથી दही खास प्रकारના विषाणु જ बनावे છે. यानी हम दूध में से जो दही बनाते हैं तो आप दही को कभी ओवन में या फ्रीज़र में आप देखना इसके अंदर जो है क्या कहते हैं कीड़े यानी बैक्टीरिया होते ही है. ढोकलाना लोट में फिर क्या दिया है? ढोकलाना लोट यानी जो अपने ढोकला बनाते हैं जो उसका आटा होता है इसके अंदर पीस्ट नामना सूक्ष्म विषाणु છે. ખાંડમાંથી मैदा પણ એક જાતના વિષાણુ મદદથી થાય છે. ખાંડમાં शक्कर में भी एक विषाणु बैक्टीरिया होता है. अब यहाँ पे हम देखेंगे बैक्टीरिया ऑफ डिजीज एंटर द ह्यूमन बॉडी थ्रू द फॉलोइंग वेज કે આપણા શરીરમાં રોગના વિષાણુ નીચેના માર્ગ દ્વારા પ્રવેશ કરે છે. તો અહીંયા પોઈન્ટ છે. તો કયા કયા પોઈન્ટ છે? થ્રો એર Number 1, through air bacteria of some disease enter the human body along with air and dust to lungs. Influenza bacteria of tuberculosis cause etc. कितने विषाणु ऐसे होते हैं कि जो हवा और धूल के थ्रू जो है हमारे लंग्स में जाते हैं. दाखला तरीके फॉर एग्जांपल इन्फ्लुएंजा, खांसी वगैरह ने विषाणु. नंबर 2, थ्रू डाइट फूड वाटर और मिल्क. खुराक पानी के दूध के थ्रू भी क्या कहते हैं बैक्टीरिया हमारे शरीर में जाते हैं. बैक्टीरिया ऑफ सम डिजीज एंटर ह्यूमन बॉडी थ्रू पोल्यूटेड वाटर और फूड. बैक्टीरिया ऑफ डिजीज लाइक कोलेरा, टाइफाइड, डेंस्ट्री, वॉर्म, जॉन्डिस. जैसे कि दूषित यानी गंदा पानी पीने से पीवाती खुराक खावाती खराब खाना खाने की वजह से केटर बहुत सारे ऐसे विषाणु होते हैं कि जो हमारे शरीर के अंदर एंटर होते हैं. फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, कोलेरा, टाइफाइड, जाड़ा, कर्मिया, वर्णों वगैरह विषाणु वगैरह इन्फेक्शन हमारे अंदर होते हैं. नंबर 3, थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट सम बैक्टीरिया एंटर डायरेक्टली और थ्रू कॉन्टैक्ट सच डिजीज आर कॉल्ड कॉन्टेजियस डिजीज लाइक स्कैबिज, रिंगवॉर्म्स, केमेंजा, लेप्रोसिस, स्मॉलपॉक्स, मसल्स, चिकनपॉक्स. नंबर 3, सीधा स्पर्श मात्र
यानी डायरेक्ट जो कांटेक्ट करती है। सम बैक्टीरिया एंटर डायरेक्टली थ्रू कांटेक्ट। और कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं कि जो डायरेक्ट हमारे अंदर कांटेक्ट हो जाती है, कि जैसे कि खांस, दांत खांस और खराजू, जैसे खुजली होती है, रक्त पत्ती, सीतड़ा, ओरी, छाबड़ा, यानी जैसे ओरी निकलती है, फिर चिकन पॉक्स, ये सब जो होती है, ये जो क्या ये रोग जो है उनको डायरेक्ट हम संपर्क में आते हैं एक दूसरे के, तो वो डायरेक्ट हमारे शरीर पे असर करती है। थ्रू एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स सम बैक्टीरिया डू नॉट डायरेक्टली enter human body. First they enter to other animals and through them they are entered the human body. First the insects of malaria are with mosquitoes. Mosquitoes bites us then enter our body through skin in the same way disease are spread by fleas also. The rabies disease spread by bite or rabid animals. Some bacteria stick on flies' feet, wings or other parts spread from one place to another and food is polluted. प्राणियों के जीव जंतु मार्फत यानी एनिमल्स के थ्रू भी हमारे अंदर जो है बैक्टीरिया यानी चेपी रोग होता है, कि जैसे कि केता विषाणु शरीर में सीधा दाखल तथा नहीं। बहुत से ऐसे बैक्टीरिया जो है वो हमारे शरीर में डायरेक्ट एंटर नहीं होते। फर्स्ट दे एंटर टू अदर एनिमल्स थ्रू द डेम एंटर द ह्यूमन बॉडी. પ્રથમ બીજા પ્રાણીઓને આશ્રય લે છે અને તેમના મારફતે આપણા શરીરમાં પ્રવેશે છે. यानी दूसरे प्राणी का क्या कहते हैं, दूसरे प्राणी के थ्रू जो है हमारे शरीर में एंटर होते हैं. फर्स्ट द इंसेक्ट्स ऑफ मलेरिया आर विद द मॉस्क्यूज. मलेरिया जो है वो किसके थ्रू होता है, मच्छर के थ्रू होता है. मॉस्क्यूज बाइट अस देन एंटर आवर बॉडी थ्रू स्किन. मच्छर के काटने से हमको जो है चमड़ी मार्फत जंतु अपनी मच्छर हमको काटते हैं. वो काटने के बाद हमारी स्किन के थ्रू जो है बैक्टीरिया जो है वो हमारे अंदर दाखिल होते हैं. फिर ચાંચડ રોગનો ફેલાવ છે. क्या जैसे कुत्ता से यहाँ पे दिया है. सम बैक्टीरिया स्प्रेड द rabies disease spread of bite of rabid animals के जैसे यहाँ पे दिया है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं बता रही थी, जैसे हम हड़का वाला कुत्ता जो रहता है वो भी हमको काट लेता है. काट लेवे तो उससे भी हमारे अंदर जो है क्या कहते हैं इन्फेक्शन होते हैं. और फिर जैसे रेबीज यानी मक्खी जो होती है, मक्खी जो गलत यानी गंदी जगह से होते हुए वो आती है, फिर वो हमारे स्किन के ऊपर हमारे ऊपर बैठती है. तो उसके बॉडी के थ्रू हमारे अंदर, हमारी चमड़ी के अंदर वो एंटर होती है. तो उसके ज़रिए भी हमारे अंदर जो है बैक्टीरिया यानी चेपी रोग होता है. नंबर 5 थ्रू रबिंग ऑफ स्किन. स्किन वर्क्स एज कवरेज अगेंस्ट बैक्टीरिया एंड टर्निंग इनटू द बॉडी. इवन देन समटाइम्स बैक्टीरिया ऑफ disease enter human body through rubbing or cut skin. Anthrax and tetanus disease are spread in this way. चमड़ीना घाव मार्फत यानी चमड़ी यानी स्किन की प्रॉब्लम की वजह से भी बैक्टीरिया होता है. चमड़ी अपना शरीर में प्रवेशता विषाणु सामने अंगों कार्य કરે છે, પરંતુ કેટલી વાર ચમડીના ઘાવથી રોગોના વિષાણુ શરીરમાં પ્રવેશે છે. દાખલા તરીકે એન્થ્રેક્સ અને टिटनेस धनुर्वाला विषाणु यानी कुछ ऐसी बीमारी जो स्किन के थ्रू होती है. स्किन के थ्रू हमारे बॉडी के अंदर एंटर होती है, जैसे कि एंथ्रेक्स और टिटनेस वगैरह जैसी बीमारी जो हमारे को होती है. नंबर 6 थ्रू ऑर्गन्स ऑफ जनरेशन
Sexual disease or secret disease are complex disease intending from the body another through organs of generation. Spills, chlamydia, gonorrhea are disease spread through the sexual contact. These are sexual disease. જનનેન્દ્રિય મારફતે એકબીજાના શરીરમાં પ્રવેશતા ચેપી રોગો જાગતીય રોગો કે ગુપ્ત રોગોના નામે ઓળખાય છે. यानी ये जो स्पिलिसिस, क्लेमेडिया, गोनोरिया ये जो है ये क्या है, एक गुप्त रोग होता है. ये जो सेक्सुअल डिसीज होती है ये गुप्त रोग होता है. ये भी एक जनेंद्रियों मार्फते होता है. 7 number, throat disease holders carriers. Some men are such that bacteria of special disease are there in their bodies, but as they have immunity or fight against such bacteria in the disease do not adhere to them. But is bacteria from their bodies enter bodies of others, then they can be disease. Such persons are called carriers of disease. In such a way, when a man becomes free from certain disease, he is a carrier of bacteria from some days, and the disease can adhere to the other person. Diphtheria, typhoid, etc. are spread through disease carriers. રોગોના વાહક. કેટલાક માણસો એવા હોય છે कि તેમના શરીરમાં विशेष रोगનો विषाणु હોય છે. यानी कितने इंसान ऐसे होते हैं कि जिसके शरीर में बैक्टीरिया होते हैं, परंतु તેમના લોહીમાં આ विषाणु सामने जूझने शक्ति होती નથી. यानी कितने इंसान ऐसे होते हैं कि जिनके अंदर बैक्टीरिया की प्रॉब्लम होती है, विषाणु होते हैं, ये जीवाणु के, और उनका जो बॉडी जो है उनके खून તેમના લોહીમાં विषाणु सामने जूझने शक्ति होती नहीं. यानी खून होने की वजह से वो विषाणु जो है वो टिक नहीं पाता, तेमने रोग लागू पड़ता नहीं. यानी इसके अंदर खून ज़्यादा होता है तो उसके अंदर ये बैक्टीरिया होने की संभावना बहुत कम होती है, जो कि तेना शरीर में विषाणु बीजाना शरीर में जाए तो तेमने रोग થઈ શકે. यानी अगर एक से दूसरे के शरीर में जाए खून के थ्रू जो है ये बीमारी रोग जो हो सकता है. आवा विषाणु वाहक के रोगी व्यक्ति ने हानि पहुँचाड़ी सके छे. यानी अगर हम एक दूसरे को ब्लड के थ्रू जो है ये बैक्टीरिया इंसान की बॉडी में एंटर होता है. अगर हम उस इंसान का ब्लड को यूज़ करेंगे या तो हमारे को ये प्रॉब्लम हो सकती है. डिप्थीरिया, अंजर वगैरह. प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन डिजीज. पर्यावरणથી ચેપી રોગોના ફેલાવાના નિયંત્રણની ભૂમિકા. Closed place house with darkness and humidity. Rotten fruits, food and vegetables are the production place of different types of bacteria. In this atmosphere, bacteria progress in geometrical progress. Bacteria increase like 1 2 to 4 to 8 like that. There will be innumerable production of bacteria in a very short period. Sunlight and open sun destroy bacteria, so we should reside in well sunlight and well ventilated open air residence. Such atmosphere control the bacteria and destroy them. बंदियार जगह यानी क्लोज्ड प्लेस. बहुत सी जगह अंधारा भेज वालों घरों, जैसे कि जो जगह बंद होती है, हाउस द विद डार्कनेस,
जो અંધારા ભેજવાળા ઘર હોય, સડેલો ફાળો કહેવાતો ખોરાક અને શાકભાજી વગેરે જુદા જુદા જંતુઓનું ઉત્પત્તિ સ્થાન છે. आवा पर्यावरण में विषाणुओं की वृद्धि झड़पी थाई है. कि इसमें बताया है कि जो घर बंद हो, जिसका अंधेरा हो, कि जो घर बंद रहते हैं, अंधेरा रहता है, और फिर रोटन फ्रूट्स यानी सड़ेलो फल होते हैं, फूड एंड वेजिटेबल्स, भाजी जो खराब होती है, ये ऐसे सब जगहों पे जो ये बैक्टीरिया यानी जंतु जो वो वहाँ पे पैदा होते हैं. और ऐसे एटमॉस्फेयर में यानी वातावरण में, पर्यावरण में यानी ये बैक्टीरिया जो है उनकी जो वृद्धि यानी बहुत ज़्यादा स्पीड में वो बढ़ते हैं. 1 से 2 के इंक्रीज द लाइक 1, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इस तरह से उनकी क्या है तादाद जो है वो बढ़ती जाती है. और कम समय में उनकी संख्या जो है बहुत ज़्यादा हो जाती है. फिर सूर्य प्रकाश અને खुली हवा विषाणु में नाश करे थे. जैसे कि सनलाइट होता है, सूरज की रोशनी. सनलाइट एंड ओपन एयर डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया. सूरज की रोशनी से जो है बैक्टीरिया जो है क्या होता है वो ख़त्म हो जाता है. क्योंकि આપણે भरपूर उससे क्या है अपने को भरपूर सूर्य प्रकाश और खुला हवा स्थल में निवास करना चाहिए. यानी हमारे घर के आगे जो है इस तरह से थोड़ा ओपन होना चाहिए ताकि हमको सनलाइट यानी सूरज की रोशनी हमको मिल सके. ऐसे वातावरण से अगर ऐसे वातावरण में हम रहेंगे तो हमको क्या विषाणु से मुक्ति मिलेगी. और ये सब विषाणु जो है वो क्या हुए वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे यानी ख़त्म हो जाएंगे. टाइप्स ऑफ डिजीज. रोगों प्रकार है. डिजीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, इन्फेक्शन डिजीज, नॉन इन्फेक्शन डिजीज. यानी डिजीज के 2 टाइप्स है. नंबर 1 इन्फेक्शन डिजीज यानी चेपी रोग અને બિનચેપી રોગ. तो नाउ नेक्स्ट 1 पॉइंट इन्फेक्शन डिजीज. हम फर्स्ट पॉइंट देखेंगे. एज वी हैव सीन इफ one person is suffering from disease and another person comes in contact with him and gets affected with that disease, then it is called infection disease caused by bacteria, viruses and fungi or infection. चेपी रोग क्या कहते हैं इन्फेक्शन डिजीज को? जाति में चेपी रोग. निर्जव परिबळ है. एज वी हैव सीन निर्जव परिबळ કે બાહ્યિક આંતરિકના વધારે કે ઉપરની અસર જન્મજાત આપણે આગળ જોઈ ગયા ને આગે દેખીએ કે તે પ્રમાણે રોગી વ્યક્તિ કોઈ રોગથી પીડતી હોય તેના સંસર્ગમાં આવનાર બીજી વ્યક્તિને તે જ રોગ થાય તો તેને ચેપી રોગ કહેવાય. यानी हमने आगे देखे कि अगर एक व्यक्ति को अगर चेपी रोग है, हम उसके कॉन्टेक्ट में आएंगे तो हमको भी क्या है चेपी रोग हो जाएगा. તેની ઉત્પત્તિ જીવાણુ, વિષાણુ, ફૂગ, પરજીવ જેવા નાના કે સૂક્ષ્મ જીવો વડે થાય છે. यानी उनके अंदर जो बैक्टीरिया है, वायरस और इन्फेक्शन के फंगी के बैक्टीरिया, वायरस, फंगी की वजह से क्या है जो हमको इन्फेक्शन हो जाता है, चेपी रोग हो जाता है. नंबर 2 नॉन इन्फेक्शन डिजीज. बिन चेपी रोग फिजिकल और मेंटल डिजीज caused by increase or decrease inhibited factors external or internal congenital defects by accident etc are called non-infection disease. ये जैसे यहाँ पे दिया है निर्जव परिबळोનો વધારા કે ઉપરની અસર જન્મજાત ખોળ ખામી કે અકસ્માત વગેરેને કારણે ઊભી થતી શારીરિક અથવા માનસિક વ્યાધિઓને બિનચેપી રોગ હોય છે. यानी कि जो हमारी पैदाइशी बीमारी होती है, जन्मजात खोड़ खप्पड़ होता है और एक्सीडेंट हो जाता है और मानसिक रीते कमज़ोर होता है, शारीरिक रीते कमज़ोर होता है, तो ये सब जो है क्या है वो नॉन इन्फेक्शन डिजीज़ है, बिन चेपी रोग है.
फिजिकल प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्फेक्शन डिजीज, चेपी रोग सामे शारीरिक संरक्षण. फिजिकल प्रोटेक्शन along with the environmental health is another important step for protection against infection disease. Physical protection against infection disease can be hand to layers. વાતાવરણીય ફિઝિકલ પ્રોટેક્શન એટલે વાતાવરણીય સ્વાસ્થ્ય સામે ચેપી રોગ સામે રક્ષણ માટે શારીરિક રક્ષણ महत्वपूर्ण पगलू से बने छे. यानी वातावरण जो है वो अगर शुद्ध रहेगा तो इससे क्या है हमारी हेल्थ पे ज़्यादा असर पड़ता है. चेपी रोग सामे शारीरिक संरक्षण बे स्तरे मेळवी शके छे. यानी चेपी रोग यानी इन्फेक्शन डिजीज़ के होने के हमको टू लेयर्स हमको मिलते हैं. फॉर एग्जांपल एक्सटर्नल प्रोटेक्शंस यानी इंटरनल प्रोटेक्शन. तो आइए हम देखेंगे. नंबर 1 डिजीज एक्सटर्नल प्रोटेक्शन या डिजीज प्रोटेक्शन आर्मर के रोग संरक्षण कवच અને नंबर 2 इंटरनल प्रोटेक्शन से यानी रोग प्रतिकारक कवच. अब डिजीज प्रोटेक्शन आर्मर. अब फर्स्ट पॉइंट हम देखेंगे कि डिजीज प्रोटेक्शन आर्मर में क्या है. जनरली मोस्ट ऑफ द इन्फेक्शन डिजीज स्प्रेड थ्रू कैरियर्स लाइक वाटर, फूड, एयर, फ्लाइज, इंसेक्ट्स etc. If an armor is set up to stop contact between disease causing bacteria and carriers spreading them, it is first step of physical protection against infection disease. कि सामान्य रीते मोटा भाग में चेपी रोग जैसे जनरली तौर पे इन्फेक्शन जो है हमको जैसे कि पानी, खुराक, हवा, माखी, कीड़को જેવા વાહકો દ્વારા ફેલાય છે. જે રોગચાળા વિષાણુ અને તેમને ફેલાવતા વાહકો વચ્ચેના સંપર્કમાં અટકાવતું હોય એક કવચ રચીએ તો તે ચેપી રોગ સામેના શારીરિક સુરક્ષાનું પહેલું પગથિયું છે. यानी जैसे कि आप जानते हो कि ये इन्फेक्शन जो है हवा, पानी, मक्खी, ये खुराक ये सब के थ्रू होता है. लेकिन अगर हम इन्फेक्शन को रोकना है तो हमको एक अपने के पीछे एक कवच की तरह हमको कवर करना पड़ेगा. ह्यूमैनिटी प्रोटेक्शंस अगेंस्ट डिसीज ऑफ द डिसीज बॉडी डिपेंड्स ऑफ इम्यूनिटी. इम्यूनिटी is basically of two kinds, natural and acquired. રોગધારક શરીરની રોગ પ્રતિક ક્ષમતા પર રોગ સામેના રક્ષણનો આધાર રહે છે. રોગ પ્રતિકારક ક્ષમતા મૂળભૂત રીતે બે પ્રકારની હોય છે, પ્રાકૃતિક અને પ્રાકૃતિક. यानी नेचुरल અને एक्चुअली. और यहाँ पे जो हमारी फर्स्ट पार्ट जो है कंप्लीट होता है. इसके आगे हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे. ओके बाय.